Hello everyone, welcome to lecture number 9 on our CSAT mathematics series. In today's lecture we are going to talk about speed, distance and time related concept. Very simple concept. We just have to understand what is speed, what is total time taken, what is total distance traveled, all of these concepts. And if you look through the past year papers, you will see that every single year you see 1 to 2 questions from this particular topic. So relatively this topic is not very difficult, and we can expect questions every single time, 1 or 2 questions in every single year. So this is a topic that we should not skip for our CSAT preparation for the mathematics part. So first we will discuss a few concepts related to it, and then we will look at the past year questions from this particular topic. So I hope we are all pumped up and ready to start. So let us begin today's lecture. All right. So first things first, what would I like to do? I would like to understand what is the concept of time, speed and distance. So time, distance and speed का concept basically हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि let's say there is a distance. ये डिस्टेंस है हमारे पास, लेट्स से दिस इज 100 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स मेरे पास डिस्टेंस है. सो ये डिस्टेंस को मेरे पास अगर मेरी कोई एक पर्टिकुलर स्पीड है वॉकिंग की, या लेट्स से इफ आई एम गोइंग बाय कार, सो इफ आई हैव सम स्पीड, लेट्स से सम गिवन स्पीड क्या होती है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो फॉर अ यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम के लिए वो 1 घंटा हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है. 1 यूनिट इज हाउ यू डिफाइन इट. सो 1 यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग, हाउ मच डिस्टेंस यू कवर पर यूनिट टाइम, ठीक है. इसको बोलते हैं स्पीड. सो स्पीड जैसे क्या हो गया कि 5 किलोमीटर्स पर आवर. सो अगर 1 घंटा मैं वॉक करूँ लेट्स से, तो मैं 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करूँगी, दैट इज़ माई स्पीड, ठीक है. तो टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप कवर कितने टाइम में कर रहे हो, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. एंड डिस्टेंसेस, अगर मेरी एक पर्टिकुलर स्पीड है, मुझे कोई एक टाइम जो है गिवन है, तो मैं कितना डिस्टेंस उस स्पीड और उतने टाइम में कवर कर पाऊंगी. ऑल दीज 3 आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो यहाँ पे ये तीनों कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि स्पीड, द रेट एट विच यू आर कवरिंग द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ मच अगर ए से बी आप गए हो तो वो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है. If you have a particular speed and if you're traveling for a particular time, and time का concept is कोई एक particular distance आपने कितने time में cover किया है. इस तरीके के concepts जो हैं यहाँ पे use होने वाले. So general broad overview here. उसके अलावा what would I like to know that I would like to know कि distance, speed and time how are they related, ठीक है. So अगर मैं बात करूँ, speed is what? Distance that I have covered, distance per unit time, right? हमने बात की थी कि speed is distance per unit time. So distance divided by time अगर आप कर दो कि भाई मैंने 10 kilometers distance travel किया in 5 hours, and if somebody asks me what is my speed, then मैं जानना क्या चाह रही हूँ कि 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाओगे. सो अगर ये मुझे निकालना है तो हाउ विल आई डू दैट? 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस आई हैव कवर्ड इन 5 आवर्स, ठीक है. सो मेरी स्पीड क्या हो गई? 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. All right. So this is the main formula that will keep revolving around in all the questions that we are going to do. ठीक है. So अब मुझे अगर distance निकालना है तो distance क्या होगा? Speed into time, right? और मुझे time अगर निकालना है तो time क्या होगा? Speed time क्या होगा? Distance divided by speed. ठीक है. So speed equals to distance divided by time. Distance is what? Speed multiplied by time. So I just multiply it here. And what is time? Time is nothing but distance divided by speed. So मैंने एक ही फॉर्मूला को ऊपर नीचे किया, और मेरे ये तीनों फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आई विल अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, ठीक है.
अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है कि मैं बोलूं कि जितने एप्पल्स मैं खाऊंगी और जितने एप्पल मेरे ब्रदर खाएंगे वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मान लो हमारा प्रोपोर्शन है 1:1, ठीक है, सो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर भैया ने 3 एप्पल्स खाए तो मैं भी 3 एप्पल्स खाना चाहती हूँ, ठीक है। उन्होंने 4 एप्पल्स खाए तो मैं भी 4 एप्पल्स खाना चाहती हूँ। सो दे आर मूविंग इन प्रोपोर्शन, ठीक है। जो रेशियो हम रखना चाह रहे हैं वो वी विल कीप इट मेंटेन्ड, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से सिमिलर थिंग्स अबाउट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो उसके बारे में व्हाट डू आई वांट टू से, लेट्स से इफ समबडी सेज कि मान लीजिए ये ओके, so all right, sometimes it is working and sometimes it's not, all right, so when we talk about proportionality, let's say मुझे बोला गया है कि this is the distance that I have to cover, ठीक है। so एक the distance I have is fixed, ठीक है। so एक बार मैंने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, ठीक है, और एक बार मैं गई 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो और हमने सेम डिस्टेंस कवर किया एंड आई वांट टू नो कि हाउ मच टाइम विल आई टेक टू कवर द डिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। सो डिस्टेंस आई वांट टू नो व्हाट इज द प्रोपोर्शन, ठीक है। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, राइट। सो दिस डिस्टेंस d is nothing but 5 किलोमीटर पर आवर into the time that I will take here, let's say this is t1, ठीक है। and the same distance I am covering with the speed of 6 kilometers per hour, and let's say I am taking a time t2 and I know this distance is same, ठीक है। so if I make them equal, what will I get? 5t1 equals to 6t2, right। so ये जो t1 और t2 का रेशियो होगा, t1 divided by t2, that is nothing but 6 divided by 5, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रेशियो हमारे स्पीड का है उसका उल्टा रेशियो जो है हमारे टाइम का है, ठीक है। सो स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम, ठीक है। सो स्पीड, तो अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, सो जो रेशियो आपकी स्पीड्स का है, हमारी स्पीड का रेशियो क्या था 5:6, राइट। तो हमारे सो दिस वॉज द रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है। अब हमारे टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, आर टाइम रेशियो विल बी 6:5, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। सो अगर आप देखोगे भी कि डिस्टेंस अगर फिक्स है तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। सो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो सेम डिस्टेंस आप कम टाइम में कवर कर लोगे, दैट इज़ वाई दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स किया था, अगर मैं बोल दूँ कि द टाइम दैट आई टेक इज़ फिक्स्ड, टाइम जितना मैं ट्रैवल करने में लगा रही हूँ वो फिक्स है, तो मुझे बताना है कि मेरी स्पीड में जो रेशियो होगा और मेरे डिस्टेंस में जो रेशियो होगा उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो अगर टाइम हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है, इफ़ टाइम इज़ फिक्स्ड, देन व्हाट कैन आई से, आई कैन से दिस d1 डिवाइडेड बाय s1 इक्वल्स टू d2 डिवाइडेड बाय s2, राइट। सो s1 बाय s2 अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, S1 by S2 equals to D1 by D2, राइट। सो जो रेशियो मेरी स्पीड्स का होगा वही रेशियो मेरे डिस्टेंस का होगा, ठीक है। सो स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो जैसे अगर यहाँ पे टाइम फिक्स कर दें हम लोग, फिक्स मान लें, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो वी से that speed is inversely proportional to time, speed is directly proportional to distance। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को represent करते हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने distance fix कर लिया, हमने time fix कर लिया, अब similarly अगर हम लोग speed fix कर लें तो distance और time का क्या ratio होगा। सो अगर आपने speed को fix कर लिया है, let's say यहाँ पे आपने speed को fix कर लिया है, तो distance and time are also directly proportional to each other, so distance is directly proportional to time,
ठीक है। सो जो रेशियो आपके डिस्टेंस ट्रैवल्ड का है वही रेशियो जो है टाइम का होगा, राइट। सो स्पीड इज नथिंग बट डी बाई टी। सो अगर जैसे कि हम लोग बात करें, लेट्स से अगर हम बात करें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उन दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, ठीक है, और एक ने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया, एक ने कुछ और अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड सेम है। इफ स्पीड इज सेम देन d1 by t1 विल बी इक्वल टू d2 by t2, राइट। सो जो जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रैवल करेगा वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो हमने तीन रिलेशनशिप्स जो हैं देख लिए हैं। तीन रिलेशनशिप्स, तीनों रिलेशनशिप्स हमें क्या बोलते हैं? इफ़ आई वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग नीटली, what would I say? I would say that if speed is fixed, speed अगर fix कर दें, ठीक है, तो distance is directly proportional to time, ठीक है। अगर time fix कर दें तो distance is directly proportional to speed, ठीक है। और अगर हम लोग distance fix कर दें, distance अगर fix कर दें, ठीक है, तो मेरी जो स्पीड है इज इन्वर्सली रिलेटेड टू टाइम, और यू कैन से टाइम इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्पीड, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। सो टाइम इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्पीड, ठीक है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे जहाँ पे डिस्टेंस फिक्स होगा या टाइम सेम टेकन होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर that this is going to be used everywhere. इसी के मैनिपुलेशंस ऊपर नीचे करके हमें जो है इसको हैंडल करना है, ठीक है। all these kinds of question we have to handle by manipulating this particular formula. all right, I hope this is clear. okay, अब क्या होता है, कई बार you will see questions like there is one body, so let's say there is one person A and one person B, ठीक है, they are moving in different directions, ठीक है। वन इज मूविंग विथ 5 किलोमीटर्स पर आवर एंड अनदर वन इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो अब वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव स्पीड, अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें कि जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड पे जो लेट्स से ट्री है, ओके, आई शुड ड्रॉ अ नाइसर ट्री। सो लेट्स से ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे जो है हमारे पास एक ट्री है। सो दिस इज़ माई ट्री, ठीक है। अब ये ट्री के रिलेटिव, अगर ये ट्री के रिलेटिव में मैं चीज़ें देखूँ तो ए जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, बी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। बट अगर मैं इनकी आपस में रिलेटेड स्पीड देखूँ, आपस में हाउ फास्ट आर दे मूविंग, तो क्या पता चलेगा कि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। तो एक्चुअली अगर आप एक दूसरे के रिलेटिव में देखो तो दे आर मूविंग विद अ मच फास्टर पेस। सो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगी, बिकॉज दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देयर रिलेटिव स्पीड विल बी द सम ऑफ द टू स्पीड्स, 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 10 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो दिस विल बी 15 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लेट्स से अब अगर दो, मान लो आप रेलवे स्टेशन पे हो, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है, आप एक ट्रेन में हो और दूसरी ट्रेन को आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जिस स्पीड से जा रहे हो, आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको लगेगा कि ओ माई गॉड ये तो इतनी फास्ट चली गई, बट एक्चुअल में स्पीड उतनी नहीं होती। आपकी ट्रेन भी मूविंग है, दूसरी ट्रेन भी मूविंग है, इसलिए आपको लगता है कि बहुत फास्ट हम लोग जो है जा रहे हैं, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड इंक्रीजेस। अब मान लो आपकी ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है इन योर डायरेक्शन ओनली। सो अगर आप उस ट्रेन को देखोगे आपको लगेगा कि आप दोनों ट्रेन स्टिल हो, क्योंकि जिस स्पीड से आप जा रहे हो, आपकी ट्रेन जा रही है, उसी स्पीड से दूसरी ट्रेन जा रही है। सो आप बेसिकली, अगर आप ये इंसान हो और आप एक दूसरे इंसान को देख रहे हो,
सो दोनों ही सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो दोनों इंसान सेम पोजीशन पे होंगे, यहाँ पे भी सेम पोजीशन में होंगे. इट विल फील लाइक एज इफ द ट्रेन आर नॉट मूविंग एंड यू आर स्टिल, बट दैट इज बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन your speeds get subtracted. ठीक है. So if you are moving in the same direction, your relative speed is, let's say अगर आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते A and B, तो आपकी relative speed क्या हो जाती, 10 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. So this is the concept of all right, yeah, this is the concept of relative speed. ठीक है. So using the example of train we can understand it very nicely. ठीक है. So if two objects are moving in different directions, their speed gets added. If they're moving in the same direction, their speed will get reduced, subtracted. So ये आपने elevators पे देखा होगा कि elevator, I think escalator, yeah, escalator. So आप जब move कर रहे हो, escalator is moving up एंड आप वॉक करना शुरू कर दो, तो एक तो एस्केलेटर की स्पीड और एक आपकी वॉकिंग स्पीड, आपको लगेगा आप बहुत फास्ट जा रहे हो. एंड लेट्स से यू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ओके, दिस इज नॉट द एग्जाम्पल दैट आई शुड हैव यूज्ड हियर, बट एनीवेज let's forget about that example. That is a different application here. Okay, all right, okay. So this is the concept of relative speed. I hope you are able to understand it. And there is one more thing that we want to understand. What is average speed? If somebody asks you what is average speed, you will find it out using the formula कि average speed is कि मैंने total distance कितना travel किया है and what is the total time that I have taken. Okay, so average speed is nothing but total distance travel divided by total time taken. ठीक है. So let's say ये route था. ठीक है. So this is 100 meters. Okay, so ये 100 meters, पहले मैं इधर गई और फिर मैं इधर गई. ठीक है. पहले मैंने जो है 10 minutes लिए इसको कवर करने में, और मैंने जब आई मैं तो मैंने 12 minutes लिए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो आई वॉन्टेड टू नो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड विद विच आई हैव मूव्ड. ठीक है. सो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, पहले 100 meters एंड देन अगेन 100 meters. सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, 100 + 100 200 meters. ठीक है. और मैंने टोटल टाइम कितना लिया, पहले मैंने 10 minutes लिए, फिर मैंने 12 minutes लिए. सो व्हाट इज़ द टोटल हियर, 22 minutes. ठीक है. So my speed would be 200 divided by 22 meters per minute. This is my average speed. So this is 100 by 11 meters per minute. This is going to be my average speed. ठीक है. So average speed is nothing but total distance travel divided by total time taken. And relative speed जो है, if you are moving in different directions, you are also moving with the speed, they are also moving with the speed, your speed gets added. If you are moving in the same direction, I am moving with this direction, they are moving with this direction, so ultimately your speed is going to get lower relative to each other. ठीक है. And this is the proportionality that we have to remember. Along with that, we'll keep playing around with this particular formula here and there to solve the questions. Okay, so these were the basic you can say concepts that we needed. Now we can directly, I think, jump on to the questions. Let's just do one simple thing here as well. ठीक है. So कई बार क्या होता है, आपको स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर्स में दी होती है and you might need to convert the speed into मीटर पर सेकेंड. तो आप किस तरीके से जो है कन्वर्ट करोगे. ठीक है. सो लेट्स से आपको दिया हुआ है कि स्पीड इज 1 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. और आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगी भाई, मुझे यहाँ से किलोमीटर से मीटर पे आना है और आवर से सेकेंड्स में आना है. ठीक है. सो इफ़ आई टॉक अबाउट किलोमीटर्स, हाउ मेनी meters are there in 1 kilometer? How many meters are there? 1000. So 1000 meter. ठीक है. Divided by 1 hour. So this is hour and I want to convert hour into second. एक hour में 60 minutes होते हैं, एक मिनट में 60 seconds होते हैं. ठीक है. So 60 into 60, right? So this is the number that I have to multiply this particular number to get the speed in meter per second. ठीक है.
So what will I do? I will just simply do the calculation and convert it. So 1 kilometers per hour. If I want to convert it into meter per second, what will I do? I'll just multiply with this particular number. So मैं इसको और simplify अगर करूँ, then what will I get? I want to remove the 2 zeros and then I have 10 by 36. ठीक है? So 10 by 36 I have. I can simplify it even further. So this is nothing but 5 by 18. ठीक है? So I don't want to do this calculation time and again जब मुझे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो सिंपली मैं क्या करूँगी? If my speed is x kilometer per hour and for some reason I have to convert it into meter per second, what will I do? I will just simply multiply it by 5 by 18 and जो मेरी resultant speed होगी that will be in meter per second. ठीक है? अब मुझे अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और मुझे अगर किलोमीटर पर आवर में करना है, then I will simply reverse this fraction and then that is how I will convert it into kilometers per hour. So I will do what? X into 18 by 5. ठीक है? And this will be kilometers per hour. ठीक है? So this is the conversion that you can remember to quickly do the calculations and do the conversions. ठीक है? So if I want to convert from kilometer per hour to meter per second, this is how I will do it. All right. So I hope this is clear and in case there is any need, you can quickly use this particular conversion. All right. So now we are almost done with every single concept that we needed to do the calculations and the past year questions. So let us just jump into them right away. All right. All right. Let's move on. Okay, so if you do the analysis of past year papers, every single time 1 to 2 questions have come. So this was asked in CSAT 2014. Simple question, simply use the formula distance, speed and time, the basic formula that we want to play around with. So let's begin. Let me read the question, let us write the question, what is given, and then we'll see what is the strategy to solve that. So a worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 kilometer per hour. Okay, so there is a worker and he goes from, this is let's say his home and this is his factory. Okay, so he'll move from his home to his factory and he reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 kilometer per hour. So one situation is he is moving with a speed of 5 kilometer per hour and if he is doing that, then he will reach his factory 3 minutes late. So 3 minutes late. Okay, so 3 minutes late, there is some time that he has in his mind कि भाई मुझे इतने टाइम में पहुंचना ही है, तो वो जो टाइम उन्होंने सोचा था उससे 3 मिनट लेट वो अपनी फैक्ट्री में पहुंच रहे हैं. ठीक है? ऑल राइट. अब दूसरी सिचुएशन क्या है? इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उन्होंने अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है 6 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेज द फैक्ट्री 7 मिनट्स अर्ली. तो वो 3 मिनट लेट के बजाय अब क्या हुआ? अब वो 7 मिनट पहले पहुंच गए. जो भी उनके माइंड में नंबर था, अब वो 7 मिनट और पहले पहुंच गए. सो व्हाट इज द सेकेंड सिचुएशन? इफ वी आर मूविंग फ्रॉम 6 kilometer per hour, like if the person is moving 6 kilometer per hour, he'll reach 7 minutes early. 7 minutes early. ठीक है? 7 minutes early. So this is my second situation. And then what is being asked from me? The distance of the factory from his house. So this is the distance that I want to calculate. What is this distance? I want to know this number. ठीक है? So मुझे दो situations दिए हैं कि अगर मैं इस स्पीड से चलूँ तो मैं 3 मिनट्स लेट पहुँचती हूँ. कोई भी टाइम है मेरे दिमाग में, लेट्स से x मिनट्स में मुझे पहुँचना है, बट मैं x मिनट प्लस 3 मिनट्स में लेट हो गई. x मिनट्स में पहुँचना था बट आई रीच्ड x प्लस 3 मिनट्स, सो आई वाज 3 मिनट्स लेट. एंड सेकेंड सिचुएशन में 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आई टुक एंड देन आई रीच 7 मिनट्स अर्ली. सो आई हैड दिस x मिनट में मुझे पहुँचना था बट मैं उससे 7 मिनट पहले ही पहुँच गई. तो आई रीच्ड इन x माइनस 7 मिनट्स. ठीक है? ऑल राइट. सो दीज आर द टू सिचुएशंस. अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली आई जस्ट हैव वन फॉर्मूला, वी जस्ट हैव वन फॉर्मूला, लेट्स प्ले अराउंड विद दैट. सो इन दोनों सिचुएशंस में I am traveling the same distance. So this is the distance that I am traveling in both the cases. ठीक है? तो मेरे पास distance same हो गया. पहली situation को मैं equation के form में लिखना चाहती हूँ. Let's say what is this distance? So this distance is nothing but
speed, so distance is what? Speed into time, right? I know this is my distance formula. Then what will I do? I know the speed, I know the time. I don't know the exact number, but I know the time. Okay, this is x minus 3 minutes. Yeah, this is x plus 3 minutes. And this is x minus 7 minutes. तो मुझे time भी पता है और मुझे speed भी पता है. And I know these two distance are the same. ठीक है. So मैंने क्या किया? Distance equals to speed into time. ठीक है. So मान लीजिए this distance is nothing but what is my speed? 5 kilometers per hour. 5 kilometer per hour into minutes. So this is x plus 3 minutes. x plus 3 minutes. ठीक है. अब ये मिनट्स में है और ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है. तो मैं क्या करना चाहती हूँ कि सब कुछ आर में कन्वर्ट कर लेती हूँ. सो मिनट्स को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे सो यू विल जस्ट डिवाइड बाय 60, राइट. सो जैसे 60 मिनट्स हैं, अगर इसको आपको आर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 60 से डिवाइड कर दोगे. तो आपके पास टाइम क्या आ गया? 1 आवर. 120 मिनट्स हो गए तो 2 आवर्स, इस तरीके से. सो आई विल डिवाइड बाय 60. ठीक है. दिस इज द डिस्टेंस इन द फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस. एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस व्हाट इज हैपनिंग? अब मेरा सेकेंड केस क्या है? माई सेकेंड केस इज व्हाट? सो इन माई सेकेंड केस माई स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड माई टाइम इज x minus 7 minutes. तो इसको भी मैं लिख लेती हूँ. ठीक है. सो इन द सेकेंड केस व्हाट इज माई स्पीड? 6 किलोमीटर पर आवर. What is my time? x minus 7 minutes. And since I'm doing the conversion, this is in minutes, so I will divide by 60. ठीक है. And what do I know? That in both the cases I'm covering the same distance. So this distance is equal to this distance. So I can equate these two equations, right? So now I will just do the equating part. ठीक है. So मैं equate करती हूँ and where should I do it? Lack of space. All right. So let me just maybe make some space here. All right. तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ? I am equating these two numbers. ठीक है. So 5 times x plus 3 divided by 60. This is equal to 6 times x minus 7 divided by 60. 60 gets cancelled. ठीक है. सो अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते तो इट वुड हैव बीन फाइन बिकॉज वी नो कि डिस्टेंस हमें इक्वेट करना है. सो फाइनली हमारे पास नंबर क्या है? 5x plus 15 equals to 6x minus 6 7 42. ठीक है. सो इफ आई डू द कैंसिलेशन what will I have? I will have I'll take it this side, I'll bring it this side, so I will have x equals to, so this is x equals to 15 plus 42, so this is nothing but 57 minutes. सो x की वैल्यू जो है मेरे पास 57 मिनट्स आ गई. ठीक है. और मुझे निकालना क्या है? डिस्टेंस. आई नो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो मैं कोई भी एक फॉर्मूला में अगर डिस्टेंस अगर मैं सिंपली x की वैल्यू डाल दूँ तो आई विल गेट द डिस्टेंस, राइट. सो लेट्स से आई विल पिक दिस पर्टिकुलर expression 5 into x plus 3 divided by 60. So that is how I'll find the distance. So distance क्या होगा? If you see, distance is what? 5 into x plus 3. X is 57. 57 plus 3 is 60. 60 divided by 60. So this is 60 divided by 60, right? So you do the calculation and you see that distance is nothing but kilometers. डिस्टेंस किलोमीटर्स में है क्योंकि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी. सो आर कैंसिल एंड देन यू विल हैव 5 किलोमीटर्स. सो द डिस्टेंस हियर इज 5 किलोमीटर्स. सो अभी तो आई हैव इलैबोरेटेड इट, दैट इज़ वाई इट्स लुकिंग कि बहुत लंबा है. बट क्विकली आपने क्या करना था? डिस्टेंस इक्वल फाइंड द एक्स एंड देन पुट द फॉर्मूला. ठीक है. सो वेरी सिंपल, जस्ट सिंपली मैनिपुलेट the formulas here and there. I hope you'll be able to do it. We've done lots of elaboration here, but quickly you'll be able to do it if you just do it in your head. All right. So let's do the other question now. So this was also asked in CSAT 2014. Again same strategy. Let us write whatever we know, जो भी हमें आता है, और फिर देखते हैं क्या strategy apply करेंगे. ठीक है. चलो, तो सबसे पहले first things first. Two cars starts towards each other from two places A and B which are at a distance of 160 kilometers. So सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले what you do, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर लो. ठीक है. सो दो कार है, एक कार ये है
अब ये एक हमारी कार है, अज्यूम यही हमारी कार है, ठीक है, एक कार ये है, इट लुक्स लाइक अ टॉर्टॉइज बट एनीवेज। सो एक कार ये है हमारी और एक और कार ये है हमारी, ठीक है, ये दो कार्स हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी। सो लेट्स से दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी, ठीक है, और ये जो दो प्लेसेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 160 किलोमीटर्स, 160 किलोमीटर्स, ठीक है, इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स, ठीक है, ऑल राइट। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम 8:10 AM, तो दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट हुई एट 8:10 AM। सो ये भी 8:10 AM और ये भी 8:10 AM, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इफ द स्पीड ऑफ द कार्स आर 50 किलोमीटर्स एंड 30 किलोमीटर्स पर आर रिस्पेक्टिवली, सो मान लीजिए कार ए की स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है, और ये जो दूसरी कार है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है दे विल मीट ईच अदर एट, सो व्हाट इज द टाइम, वो कौन सा, जैसे 8:10 पे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो कितने टाइम, कौन सा टाइम होगा घड़ी में जब जाके वो दोनों कार्स जो है आपस में मिलेंगी, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो कार्स हैं ए एंड बी, आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, जो दो प्लेसेस हैं उसके बीच का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर्स, इन दोनों की स्पीड हमें दी हुई है और हमें बताया हुआ है कि 8:10 पे जो है कार स्टार्ट हुई, तो मान लेते हैं कि ये 0 टाइम है हमारे लिए, ठीक है, लाइक इन मिनट्स आवर्स हमारे लिए 0 टाइम है। अब कितने टाइम बाद जो है हमारी कार्स मिलती हैं, ठीक है, सो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद हमारी दोनों कार्स मिलती हैं, ठीक है। सो लेट्स से टी टाइम के बाद, टी टाइम, अब ये किलोमीटर पर आवर है तो सब कुछ आर में ले लेते हैं, टी टाइम, टाइम इज इन आवर्स, ओके। सो जो आपकी स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर में, उसी में आप अज्यूम कर लेते हो कि भाई वही यूनिट है मेरे टाइम की। टी आवर्स के बाद जो है हमारी दोनों कार्स मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें देखने वाली एक बात है, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये कार ए चल रही है, अब हम ये नहीं बोल रहे कि वो मिड पॉइंट पे मिल रही हैं, भाई यहाँ पे भी मिल सकती हैं, यहाँ पे भी मिल सकती हैं, कहीं पे भी मिल सकती हैं, बट जब वो मिलेंगी तब उस सिचुएशन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये लोग जो है आके मिलते हैं, चलो यहाँ पे आके मिलते हैं, सो कार ए भी आ चुकी है, उसने 8:10 पे गाड़ी शुरू की थी, सो 0 से टाइम शुरू किया था और टी टाइम के बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई और कार भी थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर के बाद, और फिर क्या हुआ, इसने भी टी टाइम में वो कार जो है यहाँ पे आके, यहाँ पे बी कार आ गई और यहाँ पे ही ए कार आ गई, तो दोनों ने जो टाइम लिया, जितना भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, वी नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट राइट नाउ, बट जो उन्होंने टाइम लिया वो सेम है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमें क्या पता चलता है कि जो भी टाइम दोनों गाड़ियों ने लिया है ट्रैवल करने के लिए वो सेम है। सो इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है, ठीक है, कि दोनों ने टाइम सेम लिया है और टोटल डिस्टेंस जो होगा, जो इस गाड़ी ने और इस गाड़ी ने मिला के कवर किया है, वो कितना होना चाहिए, 160 किलोमीटर्स, क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। सो ये दो चीज़ों का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो अब इसका यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं, चलो सबसे पहले आई वॉन्ट टू नो, आई नो सबसे पहले तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये मुझे पता है, ठीक है। और मुझे क्या पता है कि टाइम दोनों केसेस में फॉर बोथ द कार्स इज द सेम। सो टाइम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, सो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। So time for this and for this should be equal. So that is the first thing that I will use, ठीक है। So for car A let's say, ठीक है, okay, for car A, what is the time taken? This time taken is t. So distance कितना उसने travel किया, मान लीजिए d1 उसने travel किया, d1 और let's say dA और this is dB, ठीक है। सो इसने डी ए ट्रैवल किया, इसने डी बी ट्रैवल किया, सो डिस्टेंस ट्रैवल किया डी ए डिवाइडेड बाय व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 50 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सो किलोमीटर्स डोंट नीड टू राइट बिकॉज एवरीथिंग इज किलोमीटर ऊपर किलोमीटर पर आवर नीचे, ठीक है। सो दिस इज टी। और फॉर कार बी व्हाट इज द टाइम, फॉर कार बी व्हाट इज द टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू जो भी कार बी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया डी बी
ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज इट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो टाइम है दोनों के लिए सेम है, टी, क्योंकि सेम टाइम पे आके ही तो मिलना है उन्हें, ठीक है। सो टी एंड टी आर द सेम, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ माय इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो DA डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू DB डिवाइडेड बाय 30। सो एक इक्वेशन तो मेरे पास, मतलब एक रिलेशनशिप तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा फिर मेरे पास एक और चीज़ है जो मुझे पता है, वो क्या है कि ये जो डिस्टेंस DA है और ये जो डिस्टेंस DB है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, आई नो दैट दिस शुड बी इक्वल्स टू 160 kilometers, right? So that is the second relationship that I will use. So what is my second relationship? The second relationship that I am going to use, that is nothing but, चलो अब हम लोग जो है एक दूसरी स्क्रीन पे स्विच कर लेते हैं, so that there is enough space. All right. So मेरे पास दो इक्वेशन है जिसमें okay. So I have two equation जिसमें से first is what, DA divided by 50 equals to DB divided by 30. This is first, and second one is DA plus DB equals to 160 kilometers, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली DA और DB की वैल्यू एक बार ही निकालते हैं और फिर T मैं आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। So T will be nothing but DA डिवाइडेड बाय 50, या फिर T विल बी इक्वल टू DB डिवाइडेड बाय 50। तो एक बार DA DB पता चल गया तो मेरा काम खत्म, ठीक है। तो चलो फिर दिस इज 0 0 कैंसिल, सो दिस इज नथिंग बट DA इक्वल्स टू 5/3 DB, ठीक है। सो DA की वैल्यू क्या हो गई, 5/3 DB, एंड दिस इज DB, दिस इज इक्वल्स टू 160, ठीक है। सो मैंने LCM लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 8 DB डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, इक्वल्स टू 160। सो 8 से यहाँ पे हमने 20 कर दिया, और DB जो है मेरे पास क्या आ गया, 60, राइट। सो DB जो है मेरे पास क्या आ गया, 60, ठीक है। तो मेरे पास DB अगर आ गया तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो माई टाइम इज नथिंग बट, did I make a mistake anywhere? So this is 5/3 DB, and then 8/3, and then 160. So this is nothing but 20, and then 60. Okay, DB is 60 divided by 50 hours. Okay, so this is my time. So I think, okay, so instead of, so this should be 50 and here it should be 30, not 50. So let me just make that correction, because speed for car B was 30 kilometers per hour. So this should also not be 50, it should be 30. Okay, so please make that correction. All right, so 60/30. So time is nothing but 2 hours, ठीक है। सो मेरा जो T की वैल्यू है वो आ गई 2 आवर्स, ठीक है। सो मुझे T पता चल गया, एंड व्हाट एल्स डू आई नो। अब मुझे ये नहीं बताना है कि कितना टाइम जो है लिया हमारी कार्स ने मीट करने के लिए, मुझे बस एक एग्जैक्ट टाइम बताना है कि कितने टाइम पे हमारी कार्स जो है मिली। तो अब 2 घंटे बाद मिली, इफ दिस इज स्टार्टिंग टाइम 0, इसमें 2 घंटे बाद मिली, तो ये जो टाइम है मेरा कितना हो गया, 8:10 AM के बजाय अब ये क्या हो गया, 10:10 AM, ठीक है। So both the cars are going to meet at 10:10 AM, ठीक है। So that is going to be my answer, and let us check the check the options once. All right, so if you look at the options you will see that this is going to be my answer, 10:10 AM is going to be my answer, this one is my answer, 10:10 AM, ठीक है। So इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप एनालाइज करो, सो 2 की इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो ये थी कि जब दोनों कार्स मिल रही हैं वो आपस में जहाँ पे भी मिलेंगी, जितना टाइम उन्होंने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट से वो सेम है, प्लस व्हाट इज़ द सेकेंड थिंग कि टोटल डिस्टेंस
between the car was 160 kilometers. So I have used these two things to come up with two equations and then I solved these values और वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल के लाए, ठीक है. So it's good to analyze the problem pictorially क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा जो कौन कौन से इक्वेशन या कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है यूज़ करना है, ठीक है. So I hope you will be able to do the question now. So the answer is A, 10:10 a.m. So they started at 8:10 and then they reached together, met each other at 10:10 a.m. Okay. So the same formula, distance equals to speed into time, उसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा manipulate करेंगे, ठीक है. So I hope this is clear and we can move on. Let's do another question. Okay, all right. ठीक है. So this was asked in CSAT 2015. Let me write and read the question properly. In a 500-meter race, P starts 45 meters ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meters behind. What is the ratio of the speed of A to B, assuming that both start at the same time? Again, एक 500-meter race है. अब मैं उसको थोड़ा represent करती हूँ कि मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है. So I have a 500-meter track जिस पे 500-meter race होने वाली है. 500 मीटर जो है मेरा ट्रैक है. अब ट्रैक का साइज़ वो तो होना ही पड़ेगा जो रेस का डिस्टेंस है. तो सो लेट्स से दिस इज 500 मीटर ट्रैक. B starts 45 मीटर अहेड ऑफ A, बट A wins the race while B is still 35 meters behind. तो अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है वो देखते हैं. B starts 45 meters ahead of A. तो मान लीजिए A जो है यहाँ पे है, तो B जो है B इज स्टार्टिंग 45 मीटर्स अहेड ऑफ A. वो A के आगे है 45 मीटर्स, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज 45 मीटर्स. सो A के 45 मीटर्स आगे है. B स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ A. तो यहाँ से B ने जो है रेस स्टार्ट की है. हमारा जो A है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लेट्स से दिस इज 0, और हमारा जो B है उन्होंने 45 मीटर्स जो है वहाँ से रेस स्टार्ट की है, ठीक है. और बट वॉट इज गिवन, बट A स्टिल विंस द रेस. अब इस सिचुएशन में भी दोनों ने भागना शुरू किया तो भी हमारा जो A है वो एंड पॉइंट पे आ गया. और जब A एंड पॉइंट पे आया, जब A ने रेस को जीता तो B इज स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड. तो A हमारा यहाँ पे पहुँच गया. ये हमारा 500 मीटर वाला डिस्टेंस है, ठीक है. तब भी मेरा जो B है वो 35 मीटर्स पीछे है. 35 मीटर्स पीछे है, ठीक है. 35 मीटर्स पीछे है. तो अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A टू B अज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम. तो उन्होंने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, तो मतलब जो भी टाइम उन्होंने लिया है, जो भी उनकी करंट सिचुएशन है, A ने यहाँ से यहाँ आने में और B ने ये 45 मीटर्स आगे और 35 मीटर्स पीछे यहाँ से यहाँ जाने में जो इन्होंने टाइम लिया है वो दोनों का सेम है, ठीक है. सो दिस इज या ओके. सो A started here, B started here, B is here and A is here at the end of the race, ठीक है. This is my situation and मुझे क्या बताना है, what is the ratio of speed of A to speed of B, ठीक है. So let's say speed of A is SA, speed of B is let's say SB. तो मुझे SA by SB, सॉरी, ये रेशियो में क्या नंबर आएगा वो मुझे बताना है. सो क्वेश्चन समझ में आ गया, सिचुएशन समझ में आ गई, रेस समझ में आ गई. अब मुझे स्पीड निकालनी है. अब स्पीड क्या होती है, स्पीड इज व्हाट, speed is nothing but distance traveled divided by time taken, right? So मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों जो है दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल A एंड इंडिविजुअल B, दोनों के लिए मुझे यही करना है. और दोनों के लिए मुझे पता क्या है कि दोनों ने जो टाइम लिया है, पूरा जो भी उनकी सिचुएशन है, A ने यहाँ 0 से 500 पहुँचने में और B ने यहाँ 45 मीटर्स आगे और 35 मीटर्स पीछे पहुंचने में जो टाइम लिया वो दोनों का सेम है, ठीक है. सो मैं ये वाले जो रिलेशनशिप है दैट द टाइम इज सेम उसको यूज कर सकती हूँ. सो टाइम इज व्हाट, सो इफ दिस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो व्हाट इज टाइम, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है. सो पहले A की बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज द सिचुएशन फॉर A. सो A के लिए व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ. सो फॉर A, ठीक है, A ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 500 मीटर्स, एंड उसकी स्पीड मान लेते हैं SA. सो A ने जो है A के लिए टाइम जो है
time equals to, distance was 500 meters and what was the what was the speed, SA. ठीक है, ये हो गया. We don't need to worry about the units क्योंकि हमें simply equate करना है, तो अगर कुछ कन्वर्जन भी करना हुआ तो वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए आई डोंट नीड टू वरी कि क्या मीटर में है और क्या किलोमीटर्स में है. ठीक है, क्योंकि आई विल डू व्हाट, टाइम इक्वल्स टू टाइम, राइट. तो अगर कुछ कन्वर्ट भी करना हुआ तो सेम नंबर से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से वहाँ पे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओनली इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, अब मैं बी के लिए देखती हूँ कि बी के लिए, फॉर बी व्हाट इज़ द टाइम. अब बी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो पहले तो वो 45 मीटर्स आगे चला, तो 500 में से 45 मीटर डिस्टेंस तो ये कट हो गया. ठीक है, और 35 मीटर और पीछे फिनिश किया, तो टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है वो क्या है, 500 माइनस 45 minus 35. This is the distance that B has covered. So what is this? So this is 70, 80, 500 and then, so this is nothing but 420. So distance is 420. So I subtracted these numbers. So मुझे मिला 420 जो है distance cover किया B ने with a speed of let's say SB. So मुझे ये दो relationships मिल गए और मुझे क्या निकालना है, SA by SB. और मुझे ये भी पता है कि ये जो टाइम लिया दोनों ने that is same. So I will just equate these two. ठीक है, so if I equate these two, what will I get? I will get so if I am equating these two numbers, what will I get? 500 divided by SA equals to 420 divided by SB. और मुझे निकालना क्या है, स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ A टू B, SA डिवाइडेड बाय SB मुझे निकालना है. SA डिवाइडेड बाय SB के लिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी और इसको नीचे लेके आऊँगी. सो SA बाय SB क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 420. सो दिस कैंसल्ड विद दिस एंड 2 से अगर डिवाइड करें, सो दिस इज 25 डिवाइडेड बाय 21. ठीक है, सो SA डिवाइडेड बाय SB इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाय 21. और मैं अगर इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहूँ, सो ये जो फ्रैक्शन है यही मेरा रेशियो फॉर्म में आंसर होगा. सो SA रेशियो SB इज नथिंग बट 25 रेशियो 21. ठीक है, सो विच ऑप्शन डू आई हैव हियर, 25 रेशियो 21. सो दिस इज माई आंसर. ठीक है, सो सिंपली क्या किया, सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसको इधर उधर घुमाया और बस देखा कि सेम टाइम लगाया उन्होंने, जो भी उन्होंने डिस्टेंस कवर किया. स्पीड का रेशियो निकालना था तो स्पीड हमने मान ली SA SB एंड वी जस्ट सिंपली यूज्ड द इक्वालिटी बिटवीन दीज टू एंड फाउंड आवर आंसर. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वन ट्रिक ऑलवेज इज टू पिक्टोरियली राइट इट, क्योंकि वर्ड्स में आपको नहीं समझ में आएगा. ह्यूमन माइंड यूजुअली अंडरस्टैंड पिक्चर्स बेटर, तो अगर आप थोड़ा सा पिक्टोरियली चीज़ें लिखोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी और फिर आप आगे यू कैन प्रोसीड. अदरवाइज यू कैन सी इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कुड हैव इजीली डन इट. ठीक है, चलो, सो दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. इसी तरीके के क्वेश्चन हमें और मिलने वाले हैं. ऑल राइट, मूविंग ऑन. ओके, सो दिस क्वेश्चन विल टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. ठीक है, देखते हैं. सो दिस वाज आस्क्ड इन CSAT 2015. एवरी सिंगल ईयर दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो प्लीज पे गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन टू दीज टॉपिक्स. 2 cities A and B are 360 kilometers apart. So 2 cities, city A and city B. For the sake of saving space, let's say cities are together. Okay, so 360 kilometers apart. ये 2 cities हैं, 360 kilometers apart हैं. A car goes from A to B with a speed of 40 kilometers per hour and returns to A with a speed of 60 kilometers per hour. So एक कार थी हमारी और वो जो है A से B गई किस स्पीड से, 40 किलोमीटर्स पर आवर से, और फिर पूरी A से B सिटी में गए और फिर दोबारा जो है कार ने रिटर्न लिया. और अब सो दिस इज सिचुएशन 1. सिचुएशन 2 में क्या हुआ, कार ने B से A में पूरी जर्नी फिर से ट्रैवल की और वो कितने स्पीड में किया, 60 किलोमीटर्स पर आवर में. ठीक है, सो ये 2 स्पीड्स दिए हुए हैं और इस तरीके से हमारी कहानी चली. और हमें बताना है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कि कार की एवरेज स्पीड क्या थी. ठीक है,
तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? सो एवरेज स्पीड आप बताओ क्या होती है? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, मुझे अगर एवरेज निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यूजुअली ये रहता है। अब ये फॉर्मूला आप स्पीड के लिए लगाओगे तो क्या होगा? एवरेज स्पीड इज नथिंग बट आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय आपने टोटल टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इन दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल टाइम निकालो एंड देन यू आर डन, ठीक है, दैट इज ऑल। सो ए से बी सिटी जाने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 360 किलोमीटर्स। हम वापस बी से ए में गए तो फिर से 360 किलोमीटर्स। सो टोटल डिस्टेंस अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, सो दिस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा? 360 प्लस 360, दिस इज नथिंग बट 720 किलोमीटर्स। 720 किलोमीटर्स, ये मेरा हो गया टोटल डिस्टेंस। अब मेरी बारी आएगी भाई टाइम कितना लगा मेरे को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सिंपली वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। सो अगर मुझे टाइम निकालना हो, सो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इट कम्स हियर, ओके। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्टार्टिंग में जब हम पहली बार गए, व्हाट वाज माय डिस्टेंस? 360 किलोमीटर्स। व्हाट वाज माय स्पीड? 40 किलोमीटर्स। सो इफ आई डिवाइड 360 बाय 40, दैट विल बी माय टाइम। 360 divided by 40, that will tell me what is the time taken. So that is nothing but 9 hours, right? So A से B जब मैं गई तो मैंने 9 घंटे लिए, 9 hours, ठीक है। अब जब मैं B से A में गई, मेरा डिस्टेंस 360 था बट मेरी स्पीड जो है अब 60 हो गई है, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा? 360 divided by 60. 360 divided by 60 is what? 6 hours. So you know, rather than doing the calculation, अब मैं क्या कर सकती हूँ? The time, new time is, distance was 360 divided by total speed was 60 kilometers. So this is nothing but 6 hours, right? तो अब मेरे पास टाइम पहले 9 घंटे फिर 6 घंटे, टोटल कितना टाइम लगा मेरे को? 15 hours. So 15 hours, right? सो मैंने क्या किया? अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या होगा? 4, 60, 12 एंड देन 8, सो 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो दिस इज माई एवरेज स्पीड। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज शोइंग दैट? सो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सो इसको आपको अलग से भी करने की, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वॉट यू कुड हैव डन, यू कुड हैव सिंपली यू नो डन दिस 720 किलोमीटर्स, और फिर यहीं पे ये जो कैलकुलेशन इंडिविजुअली की है, ये यहाँ पे एक ही स्टेप में आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। सो इसको हम लोग कैसे कर लेते? 360 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 60। सो ये एक ही फॉर्मूला में पूरा जो है हमारा कैलकुलेशन हो जाता। सो दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस फॉर्मूला एंड दिस स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसका बेसिक फॉर्मूला जो है उसको, वो अगर हमें पता है, वी कैन सिंपली कैलकुलेट इट, बहुत ही क्विकली हो जाता है। यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी सिंगल थिंग, दैट इज़ वाई इट माइट फील इट्स टेकिंग सो लॉन्ग, बट यू विल बी एबल टू डू दिस क्विकली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड एवरेज स्पीड। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बार यहाँ गए, एक बार यहाँ गए, ऐसा भी हो सकता है कि फिर से आए, फिर से गए, फिर से आए, फिर से गए। अब एक फॉर्मूला हम लोग याद कर ले, वी डोंट नो हाउ इट विल एक्चुअली अप्लाई, बट दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर दैट विल ऑलवेज यू नो फॉलो। चाहे आप 4 बार सिटी में अंदर बाहर करो, चाहे 5 बार, चाहे 50 बार, ठीक है, सेम फॉर्मूला विल अप्लाई। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट विल टेल यू द एवरेज स्पीड, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ऑल राइट, ओके, ऑल राइट, ओके। So this particular question, very interesting question and very logical question asked in CSAT 2016. Let me read the question, let me write it properly and understand it. A and B walk around a circular park, ठीक है। So एक circular park है, ठीक है। A and B are walking around a circular park, ठीक है। एक circular park है, 2 लोग हैं A and B, they are walking around the circular park. They start at 8 AM from the same point in the opposite direction. Let's say ये मेरा starting point है, so A यहाँ पे गया और दोनों ने same starting point है हमारा, और B जो है यहाँ पे गया, ठीक है। और फिर क्या हुआ? So B हमारा
यहाँ पे B हमारा मूविंग इन दिस डायरेक्शन, A is moving in this direction and they both started here at 8 AM. 8 बजे सुबह सुबह उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। A and B walk at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. और इनकी स्पीड हमें बता दी कि 1 घंटे में जो है A 2 राउंड कंप्लीट करता है और B जो है 1 घंटे में 3 राउंड कंप्लीट करता है। सो A की स्पीड क्या हो गई, 2 rounds per hour and so 2 राउंड का जितना भी डिस्टेंस है, दिस इज 2 hour पर, सो 2 rounds per hour and जो B है उनकी स्पीड क्या है, 3 rounds per hour, सो 3 rounds per hour, ठीक है। ये क्या हो गई, इनकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 8:30 AM। तो उन्होंने हमें क्या दे दिया कि भाई एक टाइम इंटरवल है, ये जो 8 AM से, अब ये इन्होंने मॉर्निंग वॉक का इन्होंने टाइम सोचा कि हम 1.5 घंटे वॉक करेंगे, 1.5 घंटे इज़ मोर देन इनफ फॉर माई हेल्दी बॉडी, 1.5 घंटे वॉक करेंगे। अब हमसे क्या पूछ लिया कि ये 9:30 AM तक ये आपस में कितनी बार मिले, आपस में कितनी बार स्माइल किया या गुस्सा किया, जो भी आपस में कितनी बार एक दूसरे से मिले इस ड्यूरेशन 8 AM से लेके 9:30 AM तक। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, एक सर्कुलर पार्क है, A and B मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्टार्टेड एट 8 AM एंडेड एट 9:30 AM। उनकी स्पीड हमें दी हुई है और हमसे पूछा है कि वो कितनी बार जो है इस पार्क में जब वो राउंड लगा रहे हैं तो आपस में कितने बार एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। फेस करने के लिए दे हैव टू मीट ईच अदर, लेट्स से यहाँ पे मिल गए, फिर यहाँ पे मिल गए, इस तरीके से आपस में कितनी बार मिलेंगे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं, हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि 8 AM 9:30 AM क्या था। अब पहली बार वाली सिचुएशन देखते हैं कि पहली बार जब वो मिलेंगे तो क्या हालात होगी। सो पहली बार जब वो मिल रहे हैं तो A जो है अपना मूव कर रहा है, हमारा A मान लो जो है 2 राउंड पर आवर की स्पीड, A थोड़ा धीरे चलता है और B थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है। तो A हमारा यहाँ तक मूव कर रहा है, तो A जब हमारा यहाँ तक पहुँचा, तब तक हमारा B जो है पूरा फास्ट रन करके वापस हमारा यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, ठीक है। सो पहली बार जो है वो यहाँ पे मिले, ठीक है। सो A इज़ हियर एंड देन B इज़ हियर, ठीक है। तो पहली बार जब वो मिले उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं। सो पहली बार मान लो T टाइम लिया उन्होंने पहली बार मिलने के लिए, ठीक है। तो T टाइम यहाँ पे A ने लगाया, T टाइम में A यहाँ पहुँचा और T टाइम लेके ही B यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो T टाइम में उन्होंने पूरा जो सर्कल है वो कवर कर लिया, ठीक है। चलो, तो अब आप कुछ चीज़ें देखो, मुझे क्या पता है, आई नो दैट बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और मुझे मान लो ये पता करना है कि मुझे बेसिकली T की वैल्यू निकालनी है कि T टाइम जो है वो कितना था, कि पहली बार जब वो मिले तो वो कितना टाइम था, ठीक है। ऑल राइट, तो मुझे टाइम बेसिकली निकालना है। तो टाइम इज़ नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। चलो, तो ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि ये डिस्टेंस मान लो जो A ने ट्रैवल किया वो DA है और जो डिस्टेंस B ने ट्रैवल किया वो है DB, ठीक है। अब A ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और B ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया दैट इज इक्वल्स टू 1 राउंड, यस और नो। सो आई नो दैट DA प्लस DB, सॉरी दिस इज DB, this is DB, this is DA and DB, this is equals to 1 round. So ये R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, like जितना भी बड़ा हमारा सर्कल है, this DA plus DB is R, like this is 1 round, ठीक है। And I also know that this time that they have taken, this T that they have taken, this is the same, क्योंकि सेम टाइम लगा के जिस पॉइंट पे मीट किए वही हमारा मीटिंग टाइम हो गया और जितना टाइम ट्रैवल किया वो दोनों का सेम था,
पहली बार जब मिले, सेम चीज़ आगे प्रोसीड करेगी. सो आई नो दैट t इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. स्पीड मुझे क्या पता है, 2r पर आवर और ये सब है, ठीक है. सो आई नो दैट t फॉर लेट्स से a, दिस इज dA. a उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय स्पीड वाज व्हाट, 2r पर आवर, 2r, ठीक है. और टाइम, सो दिस इज टाइम फॉर a. सिमिलरली टाइम फॉर b वाज व्हाट, dB divided by 3r, right? And both of these are the same, t equals to t. तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, I can equate these two. So dA divided by 2r equals to dB divided by 3r, right? So r cancel हो गया और मुझे क्या पता चल गया, dA equals to 2/3 dB. ये पता चल गया, ठीक है. और मैंने ये वाली जो इक्वेशन है वो यहाँ पे अप्लाई कर दी, तो dA की वैल्यू 2/3 dB मैंने लिख दिया. सो दिस इज 2/3 dB प्लस dB इक्वल्स टू r, ठीक है. तो मैंने क्या किया, दिस इज 2/3 प्लस 1, सो दिस इज नथिंग बट 5/3 dB इक्वल्स टू r. सो dB की वैल्यू क्या हो गई, dB की वैल्यू क्या हो गई, 3r डिवाइडेड बाय 5. सो b ने जो है 3/5 r डिस्टेंस ट्रैवल किया और हमारा फिर जो a का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 2/5 r, ठीक है. अब आप मुझे बताओ, अब मुझे निकालना है कि टाइम कितना लिया. पहली बार जब वो लोग मिले तो उन्होंने कितना टाइम लिया. सो व्हाट इज़ माय टाइम. अब मैं dB की वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे. तो टाइम जो है, टाइम अगर मैं निकालना चाहती हूँ, सो टाइम विल बी व्हाट, so let me just erase this particular section. So if I remove this, एक बार मेरे को पता चल गया कि वो एक बार पहली बार जब मिलते हैं तो वो कितना टाइम लेते हैं. सेम प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग, ठीक है. सो मुझे टाइम निकालना है. सो टाइम इज इक्वल्स टू dB डिवाइडेड बाय 3r. सो व्हाट इज dB, dB इज 3r/5, 3r/5 एंड नीचे क्या है 3r. तो टाइम क्या हो गया मेरा, 1/5. और ये 1/5 क्या है, आवर्स में है. अब मैं आवर्स में है तो मैं मान लो मिनट्स में निकालना चाहती हूँ. आई डोंट वांट टू कीप इट 1/5. सो t इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स 60. सो दिस इज नथिंग बट 12 मिनट्स. तो 12 मिनट में जो है ये पहली बार मिल गए. सो 12 मिनट A चला, 12 मिनट B चला और दोनों पहली बार मिल गए. अब आप मुझे ये बताओ, अब आई होप यू आर एबल टू सी द ट्रिक. सो अब हुआ क्या कि हमारे पास व्हाट इज द सिचुएशन, अब A और B 12 मिनट हुई यहाँ पे मिले. अब यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. फिर से 12 मिनट हुई और फिर वो कहीं मिलेंगे, फिर से 12 मिनट हुई वो कहीं मिलेंगे. तो अब मुझे बस ये देखना है कि ये जो 8 AM है और ये जो 9:30 AM इसके बीच में 12 मिनट के कितने कितने इंटरवल्स हैं, राइट. बिकॉज एवरी 12 मिनट्स दे आर मीटिंग. क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके बारे में कुछ स्पेशल बात तो है नहीं. अब ये पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे 12 मिनट बाद मिल गए. अब यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. अब इस सर्कल को ऐसे कर लो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. और बार बार ये बाहर 12 मिनट में ये सिचुएशन चल रही है. तो मुझे बस ये देखना है कि इस इंटरवल में 12 मिनट के कितने कितने लाइक हाउ मेनी 12 मिनट्स आई कैन मेक इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है. सो 8 AM से लेके 9:30 AM के बीच में कितने मिनट्स हैं. सो देर इज 1 आवर एंड देन 30 मिनट्स. So 1 hour is 60 minutes and 30 minutes. 60 and 30 is what? 90 minutes, right? So मेरे पास 90 minutes हैं. तो I just want to remove these things. So I have 90 minutes. 90 minutes में अब मैं 90 को अगर 12 से डिवाइड करूँ, so every 12 minutes I am meeting. एंड आई हैव 90 मिनट्स. 90 मिनट्स है मेरे पास, ठीक है. सो 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84. सो 12 × 7 = 84, ठीक है. तो पहले 7 बार वो मिले, 84 मिनट हो चुके थे. फिर क्या हुआ, फिर 6 मिनट बचे हैं. 6 मिनट और दे देते तो शायद वो एक बार और मिल जाते.
तो बेसिकली ये जो 90 मिनट का इंटरवल था, इसमें 7 टाइम्स वी हैड दिस इंटरवल, और उसके बाद 6 मिनट हमारे पास बस एक्स्ट्रा बच गए। और फिर वो 6 मिनट जो एक्स्ट्रा बच गए उसमें क्या हुआ कि ए शायद कहीं यहाँ होगा और बी यहाँ पे होगा। उनको 6 मिनट और दे देते तो वो मिल जाते, बट हमारे पास उतने 6 मिनट नहीं थे, तो हमसे पूछा है कि इस इंटरवल में वो लोग कितनी बार मिले। सो 12 टाइम्स 7 इज 84, 84 सबसे क्लोजेस्ट था इसके 12 का जो मल्टीपल है। तो in this whole interval of like 8 AM to 9:30 AM they met 7 times, and अगर उनको 6 minutes और मिल जाते, राइट, कि ये 9:30 से 9:36 AM हो जाता, तो वो 8 बार मिल लेते आपस में, ठीक है। सो दिस होल सो द आंसर हियर इज 7, सो दे मेट 7 टाइम्स, क्योंकि इस 90 मिनट्स के इंटरवल में 12 मिनट्स के इंटरवल्स जो थे कंप्लीट वो थे 7, ठीक है। सो एक बार ही रिकैप करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो हुआ क्या, स्टार्ट किया हमने, बस एक टाइम इंटरवल निकाला कि वो कितने इंटरवल के बाद मिल रहे हैं, तो एवरी 12 मिनट्स दे आर मीटिंग। फिर मेरे पास सिंपल काम है, अब तो ये चाहे 8 AM से 10 AM 10 PM कर दें, कुछ भी कर दें, मुझे बस 12 मिनट्स के इंटरवल्स जो है कितने होंगे वो बताने हैं। और ये T12 कैसे आया, ये हमने पहले भी किया था, राइट, कि जब वो 2 कार्स आपस में ट्रैवल कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस 160 किलोमीटर्स था, तो मुझे पता है कि उन्होंने सेम टाइम लिया और टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया दैट इज़ r, सो टोटल डिस्टेंस इज r, और टाइम दोनों का सेम है, वो रिलेशनशिप यूज़ करके हमने ये यूज़ किया और फिर dB की वैल्यू निकाली और फिर t की वैल्यू निकाली। The moment we have t, we are done. We will just simply, find the number of complete 12 minutes interval in this particular time period, ठीक है। So this is how you will tackle such questions, ठीक है। वेरी गुड अप्रोच। अब इसमें बहुत कुछ भी ट्वीक कर दें, आपका स्टैंडर्ड अप्रोच क्या होगा कि मुझे वो टी इंटरवल निकालना है जिसके बाद वो पहली बार मिलेंगे, एंड एवरी सिंगल टाइम इट्स द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन, देर इज नो फॉर्मूला एज सच दैट वी यूज्ड जो आपको याद करना पड़े, जनरल लॉजिक्स वी हैव यूज्ड, ऑल राइट। So I hope you liked the approach that we've used to do this question, and you were able to understand the question and do some practices. So similar question have come in later years as well, so we will do them at some later stage. For now, like for today, for this lecture, that is all. So I will see you in next lecture. Till then, take care and keep practicing. Thank you so much.